in this session, guys, I'm just going to talk about geometry, right? So the topic is going to be geometry, right? So I'll talk about 2D geometry as well as 3D geometry. Metry is nothing but, measurement kind of thing, right? Measurement, okay? So we can measure length of a side, okay? Any side will be given. We can measure the length of a side. We can also measure the angle, right, between two sides if it is a trigonometry kind of situations, right? So many things are there, okay? So this topic is very, very important. So we will be discussing, the theory of geometry and mensuration. You can say mensuration also. Geometry and mensuration in two major parts, right? So the first part is going to be the, you can say, the geometry and mensuration of two-dimensional figure, and geometry and mensuration, you can say mensuration of three-dimensional figure, right? So part one is going to be the geometry. Okay, so geometry and mensurations are very important areas in any aptitude exam you talk about. Okay, you might get one question certainly, right? So first of all, some of the basic conversion you should know, right? Because after all, we are going to measure the length of a side, so many things. Yeah. Hi Devans, namaste. I'm very glad that you joined the session, and you know, so so first of all, from the name itself, we must understand that कि हमें measure करना है length and length of a geometry, we can find the area, volume, so many things we are going to talk, right? तो उसमें क्या होगा, जो measurement quantities होंगी, जैसे we will express them in 1 meters, 1 meter equal to what, right? All these things are there, right? So if I ask you 1 meter equal to how many centimeters, so you should know that these things, 1 meter equal to 100 centimeter. You can also express this into 1,000 millimeter, right? Okay. 1 kilometer is nothing but what, you can say 1,000 meters. So these are the facts that you should know. 1 kilometer, right? Okay, 1 kilometer equal to 1,000 meters. Okay, and that is equal to, if I want to express in terms of miles, so you can say 5/8 miles. Okay, ये basic facts you should know. And if I ask you 1 meter equal to how many inches, right? Because these are the some we don't use, we don't talk about. 1 meter is nothing but 38.39.37 inches, right? Okay. 1 miles is nothing but 1760 yard, right? 1 miles equal to 1760 yard. Okay. And which is also equal to, you can say in terms of feet. Okay, so 5,280 feet. Okay, 1 mile. Okay, and 1 nautical mile is equal to, these are the new units, right? 1 nautical mile equal to 60 80 feet, right? And you can also remember 1 kilogram, 100 kilogram is nothing but 1 quintal, right? So all those things I believe everybody knows. Okay, so let me write also that 100 kilogram is someone is going to ask. So this is nothing but 1 quintal, 1 quintal, and 10 quintal is nothing but 1 ton. 10 quintal is nothing but 1 ton, right? And you can say that that is nothing but 1,000 kilogram. Okay, these are the units that you should know, right? Fine. So and 1 kg is nothing but in terms of pound. If you say 1 kg is nothing but 2.2 pounds. Okay, these are the units that you should know, right? That is approximate unit. And one of the question was asked by somebody to me, what is 1 hectare equal to how many square meter, right? That is 10,000 square meter, right? So you have to understand these things. Okay, so 1 hectare, okay, 1 hectare is nothing but 10,000 square meter. 1 hectare basically, huh? And 1 acre is nothing but 100 square meter. 1 acre is nothing but 100 square meter, right? So these are the facts that you should know. And 1 liter is nothing but 1,000 cc. Okay, so this is the story.
And before I start geometry, we need to talk about straight lines. Okay, so before I start straight line, you should know point. What is point? Basically, point is nothing but you know, which has no dimension at all, right? Point, just if you put a point of your pen on a paper, that becomes a point. ठीक है? तो point क्या होता है सबको पता है, ठीक है? तो अगर हम lines की बात करते हैं guys, तो there are different types of lines. We will talk about straight line. Okay, straight line में हम लोग बात करेंगे parallel lines की. What is parallel line? The lines, two straight lines, you can say they are parallel if they lie on a same plane. First of all, okay, they must lie on a same plane, okay, and they do not intersect each other. Okay, they will never intersect each other. From anywhere they will start, okay, they are not going to intersect. That is very important. Okay, and if you take these are the parallel lines, you can say, right? So if you take the lines are basically shown like this. Okay, this is the line, and if you take these 2 points are fixed, right? So you can say this is nothing but a line segment. A line segment. This is the line going in any direction. Okay, line segment is this. Line segment is nothing but a part of line, you can say, like A to B. Okay, and if suppose any point is fixed and it is free, so this is called ray, basically ray. Okay, this is called ray. Okay, because one of the point is fixed and one point is free, you can say, that is called ray. Everybody knows that. Okay, so if two parallel lines are there, so two parallel lines means you can say that these are the two parallel lines, you can say one line and this is one line, right? So these are two lines which are parallel. Okay, parallel to each other, and they will never intersect. The angle between these two lines are also 0, you can say. And if I take two lines which are parallel to each other, you can say like this, and if I take one more line which is intersecting these two parallel lines, we call it transversal. इसको क्या बोलते हैं? Transversal बोलते हैं. So once they will cut, these two parallel lines, there will be angles. So you can say this is one angle. This angle will correspond to some angle. You can say this is one more angle. This is one angle. This is angle. Okay, these are the so many angles are there, you can say. Okay, you can say here, you can also put some number. We'll start from 1 2 3 4, right? Then we can say that this is nothing but 5 6 7 8, right? So these are the angles. Some angles are known as interior angles, some angles are known as exterior angles. Okay, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको समझना पड़ेगा, right? So there are some corresponding angles, you can say. Corresponding angles are always equal, so it is a straight line only. Transversal is nothing but a straight line, okay, that intersect two parallel lines. Okay, and when parallel lines intersect you can say when transversal intersect two parallel lines, there will be some sort of situation. So I'm just going to pick up this and paste here so that I can save my time and your time also, because these things are very simple thing, right? So I'm just going to take some points here and paste here. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर गेट एग्जाम में. दैट क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम 5th ग्रेड ओनली, राइट? लेकिन बहुत सारे बच्चों को भी नहीं आता है. ओके, सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. So parallel lines means two straight lines are parallel if they are, they lie on a same plane. That is very important. And two do not intersect, okay, however far produced. Transversal is nothing but it is a straight line that intersect two parallel lines. When transversal intersect two parallel lines, so then corresponding angles will be there. You see corresponding angles, okay? So here 1 and 5 are the corresponding angles, okay, because they come one side here. 2 and 6 are the corresponding angle, you can say, and 4 and 8 are the corresponding angles, okay, and 3 and 7 are the corresponding angles. Okay, so which comes one side only, right? Okay, we are not telling that the corresponding angles are 1 and 7, right? There are alternate interior angles, okay, that is very important. So 4 and 6 are interior angles, they are alternate, okay, and 5 and 3 are the interior angles, okay, and alternate exterior angle. Okay, exterior angles are what? You can say 2 and 8, they will be equal, right? And why I'm talking all these things, because they will be very helpful when you will face a problem based on parallelogram. क्योंकि आपको parallelogram कैसे मिलता है? You will be having two parallel lines and two transversals will be intersecting,
so you will get one parallelogram kind of situation, ठीक है, because after all parallelograms will be having line segments, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, like polygon, what is the meaning of polygon, and interior angles on the same sides of a transversal added up to 180 degree, right, if you add 4 plus 5, right, तो आपको पता भी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन आपको याद रखना है. Then we will move ahead and talk about polygons. That is very very important. The very first okay, what is the meaning of polygon? Okay, so poly means many, guys. Poly means many, and gun means sides, number of sides. So there will be many sides. Okay, and what is the definition of polygon? Polygon means a figure, you can say, which is having line segment. Okay, straight line segment. हमेशा याद रखना, polygon हम उसी को बोलेंगे जिसमें line segment रहेगा, and there should be a closed figure. Polygon is nothing but a closed figure consisting of line segment in it, right? तो अब आपको मान लो closed figure, you have to make a closed figure, right? So how many sides you need to make a closed figure? Minimum number of sides. देखो अगर आपके पास 2 sides हैं, 2 line segments हैं, you can't get a closed figure, right? So remember, this is the very important definition. Polygons are the plane figure, you can say. They are plane figure formed by a closed series of rectilinear straight line segments. Okay, examples you can say like triangle, rectangle. So the very basic polygon is nothing but a, you can say, triangle. Okay, and there are different types of polygon also. Polygons can broadly be divided into 2 types. Remember, one is regular polygon. Polygon with all sides and angles are equal, we call it regular polygon. And irregular polygon means polygon in which all sides or angles are not the same measure. Okay, and polygon can also be divided as concave or convex polygons, right? Okay, that is very important. So we'll see that what is the meaning of convex polygon. Convex polygons are nothing but what, in which all the diagonal lie inside the figure, otherwise it will be concave polygon. ठीक है, जो भी diagonals रहेंगे they will be lying inside the figure. Okay, so the very basic polygon that we can talk about is, polygon is nothing but closed figure having line segment in it, and these are very important polygons. Okay, polygons are very very important. आपके real life में अगर हम बात करते हैं the problem of tessellation की, Devans, do you know the problem of tessellation? What is the meaning of tessellation? I think you might have heard, आपको पता भी होगा tessellation का मतलब क्या होता है, क्योंकि गेट में एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि अगर आपको टेसलेशन करना है, टेसलेशन का मतलब होता है टाइलिंग द फ्लोर. ओके, सपोज यू हैव गॉट सम हाउस एंड यू वांट टू फ्लोर दैट विद द हेल्प ऑफ सम टाइल्स, राइट? सो टाइल अगर आपको लगाना है अपने घर में, तो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ फिगर यू आर गोइंग टू प्रपोज, राइट? तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स रहेंगे ऑप्शंस में, लाइक यू हैव गॉट सर्कुलर टाइल, यू हैव गॉट रेक्ट, स्क्वायर टाइल, रोम्ब, तो आपको चूज करना है. ठीक है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे वो कैसा क्वेश्चन था. तो अगर आपको एक पॉलीगन बनाना है तो यू नीड एटलीस्ट मिनिमम 3 नंबर ऑफ साइड्स. द बेसिक पॉलीगन 1 2 3, दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल. Okay, this is called as triangle. There are different types of triangle. Okay, yeah, covering a surface with the tiles. Okay, so you have to be little careful also, right? What kind of shape you're going to choose for tiling a floor, right? वो 5th क्लास में मैंने देखा था, 5th क्लास की बुक में, तो आई गॉट सरप्राइज कि गेट एग्जाम में 5th क्लास का क्वेश्चन आ रहा है, एंड वी इंजीनियर फॉरगेट ऑल दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये जो है एक बेसिक है. यहाँ पर हम ट्रायंगल के साथ क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ साइड्स, वी कैन मेजर द एंगल बिटवीन 2 साइड्स. ओके, अगर हम बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि टोटल एंगल अगर आप बात करोगे, टोटल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, they are going to be what, sum of interior angle is gonna be 180 for triangle, है ना? और अगर मान लो 4 साइड्स हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, राइट? क्वाड्रिलेटरल, देयर आर 4 साइड्स. ओके, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी 360. ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं. उसमें स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, पैरेललोग्राम, सो मेनी थिंग्स. सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन बिकॉज सर्कल डज नॉट हैव अ साइड. यू कैन सी लाइन सेगमेंट्स नहीं है वहां पर.
तो सर्कल को आप लोग कभी भी मत लेना, ठीक है। अब देखो यार, सम ऑफ एंगल आपको फाइंड करना है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ n sided polygon, okay, is equal to, suppose there are n number of sides and you have to find the what will be that, right? So you have to remember that n minus 2 times 180 degree, ठीक है। This is the general formula to compute sum of interior angle, right, of n sided polygon. अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो n is gonna be 3, तो n minus 2, 3 minus 2 into 180, that is 180, right। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स रहेंगे, तो आप आराम से 4 minus 2 into 180, 2 into 360। अगर मान लो आपके पास पेंटागन है, हेक्सागन है, so many things are there, so you can remember that। Just I will put one sheet here and you can just remember this, okay। So polygons can also be divided into based on, you can say, the number of sides, yeah। ये देखो, बस आप इतना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है कि फॉर्मूला याद है तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल, द बेसिक इज ट्रायंगल, नंबर ऑफ साइड्स शुड बी 3, एटलीस्ट 3 साइड्स आर नीडेड, ओके, टू फॉर्म अ पॉलीगन। फिर क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, व्हाट फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, n minus 2 into 180 डिग्री, ठीक है। 360, 540, 720 हेक्सागन में रहेगा, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। नोना मीन्स 9, डेका मीन्स 10, ऑक्टा मीन्स 8, हेप्टा मीन्स 7, हेक्सा मीन्स 6, पेंटा मीन्स 5 एंड क्वाड्रिलेटरल। तो इतना आपको याद होना चाहिए, बस हो गया। This is very very important to keep in mind, okay। So I believe this is fine, and there are some properties that I have told you. Sum of all interior angles in case of n-sided polygon is nothing but n minus 2 times 180। Sum of all exterior angle, okay, exterior angle, मान लो कोई भी पॉलीगन आपके पास है एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कोई पूछता है, सपोज यू हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ पॉलीगन लाइक दिस, ठीक है, ये पॉलीगन आपके पास है, कोई पूछता है व्हाट इज सम ऑफ all exterior angle, they are the exterior angle, they are making angle outside only, so this is nothing but, you can say, theta 1 plus theta 2 plus theta 3 and so on, right। So many, it should be equal to, total should be equal to 360, ठीक है। 360 is answer, 360, okay, this is the very important, keep in mind। तो अगर मान लो 6 हैं यहाँ पर, टोटल 6 हैं, राइट, तो 360 आना चाहिए। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन, ओके, 360 अपॉन द एक्सटीरियर एंगल, ओके, एक्सटीरियर एंगल, okay, number of sides equal to 360 upon the exterior angle, right, this is the basic relation that you should know। And if you want to compute area, right, if you want to compute area of any sort of polygon, so you can use simple formulas, right। I will give you simple formula, बाकी आगे की बात भी करेंगे। तो एरिया अगर आपको कोई भी पॉलीगन का फाइंड करना है, इफ इट इज n sided polygon, you can say that area is going to be equal to n times s square by 4, n times s square by 4 into cot 180 by n। This is the area formula, okay, for a n-sided polygon, where s is nothing but length of a side and n is nothing but number of sides, ठीक है, s is nothing but length of sides and n is nothing but number of sides, ठीक है। So if you want to compute for you can say triangle, what is the area of triangle, so you can compute it, right। तो triangle में क्या होता है, देखो, ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता भी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज देयर, राइट, लेकिन देयर आर मेनी फॉर्मूला विच आई विल डिस्कस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ फाइंड करना चाहते हो तो जस्ट पुट हियर, राइट, नंबर ऑफ साइड इज 3, लेंथ ऑफ अ साइड वी डोंट नो, राइट, सो we need to know that, okay, so you can't compute then, okay, so remember this in general formula, right, yeah। And the perimeter, you can find number of sides into the length of a side is going to be a perimeter, right।
Perimeter is nothing but what, guys? Perimeter is nothing but length of a boundary n into s, कोई भी पॉलीगन दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें गाइज ट्रायंगल की, तो बेसिक डेफिनेशंस आर व्हाट, राइट? एज आई टोल्ड यू, एंड a triangle is a polygon having 3 sides, and sum of all angles of a triangle, you can say, is going to be 180. I'm talking about interior angle, right? So there can be different types of triangle based on the angle, right? Because you know we have got different types of angles, right? If angle is less than 90, we call it acute angle. अगर angle 90 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं obtuse angle, है ना? ये आपको समझना, अगर 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन talk different types of triangles, right? So there are different types of triangles, आपको पता भी होगा. We call it acute angle triangle, we call it obtuse angle triangle, okay? We call it right angle triangle, which is very popular in case of trigonometry, right? Right angle triangle, equilateral triangles, isosceles triangles and scalene. Scalene के केस में क्या होता है? None of the sides are equal. Equilateral triangle के केस में क्या होता है कि all sides are equal, right? एंड आइसोसेलेस में क्या होता है कि ट्रायंगल विद 2 ऑफ इट साइड्स आर इक्वल, मतलब सारे साइड्स इक्वल नहीं है, उसको बोलेंगे स्केलीन. आइसोसेलेस 2 साइड इक्वल, सारे साइड्स इक्वल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? ये आपको याद रखना है. तो आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स ट्रायंगल से के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेसिक फिगर, यू नो, बेसिक पॉलीगन. ओके, सो आप ये सब याद कर लेना, मतलब जस्ट यू हैव टू ब्रश अप दिस थिंग, दैट्स इट. ओके, अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखना है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. So they might ask, they will be giving you 3 length of a sides, and they might ask ki which length of a side you can use so that you can construct a triangle. तो आपको हमेशा याद रखना है the properties in general, right? What are those property? The sum of length of any 2 sides of a triangle, right, has to be always greater than the third side. अगर 2 साइड का समेशन आप फाइंड करते हो, सम प्रॉपर्टी इन जनरल आपको याद रखना है, ठीक है? तो देयर आर 2 प्रॉपर्टीज दैट आई विल शो यू एट दिस मोमेंट, तो आप याद रखो, ठीक है? दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. ये सारे ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है. सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन, मान लो कोई भी ट्रायंगल है, आई एम जस्ट टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, यू कैन से दैट ए प्लस बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी, ठीक है? ओके, sum of length of any 2 sides of triangle. Okay, they might ask question, ऑप्शन में दे देगा 3 साइड्स, पूछेगा कौन सा साइड यूज करके आप ट्रायंगल रियलाइज कर सकते हो, तो आपको पता ही नहीं है क्योंकि भूल गए हैं, राइट? इंजीनियर्स ऑलवेज फॉरगेट एवरीथिंग देयर स्कूल डेज. ओके, और गेट में 15 नंबर आता है, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 5 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के रहते हैं, ठीक है? तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं, 5 क्वेश्चन आपके, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आ जाते हैं, तो आपको इंग्लिश भी अच्छे से करना है. उसके लिए मैं एक सेशन आपको देने वाला हूँ. डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैज टू बी ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड, ठीक है? तो मतलब आप 2 साइड ले लो, उसका डिफरेंस निकालो, तो हमेशा वो लेस होना चाहिए कंपेयर टू थर्ड साइड. एंड साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल विल बी ग्रेटेस्ट, ठीक है? तो मान लो, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल. इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 90 डिग्री है. उसके सामने वाला जो साइड है वो बड़ा है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, राइट? एवरीबॉडी नोज, राइट? एंड द साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल आर द स्मॉलेस्ट वन, राइट? ये भी एक फैक्ट है. ये 3 फैक्ट्स आप याद रखना. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. एंड देयर आर सम साइन रूल आल्सो. साइन रूल आपको याद रखना है कि साइन रूल क्या होता है, ठीक है? तो साइन रूल याद करने के लिए आप क्या करोगे? यू शुड नो दिस रूल. ओके, आई मीन जस्ट यू टेक वन ट्रायंगल, और आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कंस्ट्रक्ट यू नो सर्कल, ओके, ज्वाइनिंग ऑल द वर्टाइसेस. ये आपको याद रखना है, एक ट्रायंगल है, राइट? और यू हैव ड्रॉन, कंसीडरिंग दिस सेंटर, यू हैव ड्रॉन वन सर्कल हियर, वन सर्कल हियर, राइट? तो यहाँ पर आप साइन रूल याद रखना. साइन रूल, what is sine rule here? Sine rule is nothing but you take a, and opposite angle is a upon sine a plus equal to b upon sine b, right, equal to c upon sine c, equal to what? It will be equal to 2 times of r, ठीक है?
2 times of r. This is also very basic thing that you have to understand. And what is the r here? R is nothing but circumradius. We call it circumradius. Circumradius. Okay? Circumradius. Okay. So, and cosine rule will be what? Cosine rule is again very simple. Okay. So, cosine rule also you have to do. Cosine rule is nothing but a square equal to b square plus c square minus 2bc. Okay. Sine of angle. Okay. Sorry. Cosine of angle. Cosine of angle a. Okay. This is called cosine rule. And this is true for all sides and respective angles you can use, right? And in case if there is a right angle triangle, so your solution become what? The formula will be reducing to a square plus b square plus 2c square, because theta a is going to be 90 degree then. Okay. And the exterior angle is always equal to, remember, the sum of two interior angles, right? Two interior angles. That is also very, very important to keep in mind. Okay. Chalo. So if you take any right angle triangle, अगर आप लेते हो, ठीक है, suppose you take this kind of a triangle. I'm just going to take one triangle here, okay? A very simple triangle. Any sort of triangle you take. This is a triangle. So you can talk about many things. This is a triangle ABC, but you can define the radius by dropping perpendicular. Okay, so this is the height of the triangle, and this is nothing but a base. If I ask you what is the area of the triangle, area is nothing but a size of the plane figure. It is always defined as half base into height. Half base into height. Okay. Okay, so height is nothing but perpendicular distance between the base and the vertex opposite to it. जो base है उसके opposite जो vertex है उसका जो shortest distance, which is nothing but a perpendicular distance. Okay. मान लो कि if there is a scalene triangle whose sides are not same, right? All the sides are different. Okay. तो उसके केस में how to find area? तो आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं हेरोन फार्मूला, राइट? तो मान लो कोई एक आप ले लो, दिस इज काइंड ऑफ काइंड ऑफ यू कैन से दिस इज ए, ओके, लेट मी टेक हियर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ओके, so suppose this is nothing but a scalene triangle and you don't know the height of the triangle. Okay, so you can use the Heron formula. Heron formula में आप सबसे पहले क्या निकालोगे? Perimeter of this. So perimeter of this is nothing but a plus b plus c, and the semi perimeter S is going to be a plus b plus c by 2. Okay, this is nothing but semi perimeter. Okay, so Heron formula says that area equal to square root of S into S minus a, S minus b, S minus c, right? Sometimes it is very difficult to find the height of the triangle. Okay, so you can use this formula also. S into, what is S guys? S is nothing but a semi perimeter. Okay, semi perimeter, we call it Heron formula or Hero's formula, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ठीक है, बाकी you can also use the definition of r times s. Okay, s is going to be the size of like length of a side and the radius. और एक और होता है बहुत ही important formula है, that you have to remember. Okay, what is that formula? The formula is nothing but this formula is very important formula, आपको याद रखना है. अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये नेचुरल फॉर्मूला है. इफ यू डोंट नो द हाइट एंड ऑल, यू कैन यूज इट, बिकॉज वी आर इंजीनियर, वी आर फैमिलियर विद एवरीथिंग. ठीक है, एरिया निकालने के कॉन्सेप्ट और होता है, दिस इज वेरी फास्ट. 1/2, रिमेंबर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, या प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू इंक्लूडेड एंगल. ओके, sine of the included angle, you can say sine of included angle, sine of included angle. So half product of two side is what? Suppose I'm talking about BC, so BC into sine of A, you can say 1/2 AC into sine of B, 1/2. Okay, so you don't have to find anything like height and all, directly you can find the area of this, right? So जैसे इक्विलेटर ट्रायंगल आता है आपके केस में, राइट? तो अब
उसमें आप हाइट निकालना चाहते, एरिया निकालना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, फॉर्मूला भूल गया, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि दो साइड सेम ही है, हाफ इंटू ए स्क्वायर एंड साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। डायरेक्टली आंसर आ गया ए स्क्वायर √3/4। तो आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है? ये वाला कॉन्सेप्ट, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, अब ना तो आपको हाइट की टेंशन है, कुछ भी नहीं है, राइट? ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। तो अगर आप बोलोगे ए बी इंटू साइन ऑफ सी, ठीक है, तो मुझे तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगता है, बीइंग एन इंजीनियर, राइट? और आप एक एरिया और निकाल सकते हो, अगर आपको सर्कम रेडियस पता है, तीनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, सारे फॉर्मूले हैं, राइट? एरिया कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बी सी बाई 4 टाइम्स आर। अगर आपको सर्कम रेडियस पता है, आर इज नथिंग बट अ सर्कम रेडियस। Fine, these are the formulas that you have to remember, right? Fine, so कुछ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलरिटी। वो सारी चीजें मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, है ना? सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेंगे, क्वेश्चन लेंगे इनफैक्ट, ठीक है? इट वाज आस्क्ड इन गेट 2023, ओके, इन सम ऑफ द ब्रांच। पहले क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, ठीक है? उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, I'm just going to take one question, a very good question. This was asked for 2 marks. ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए 2 मार्क का क्वेश्चन। And this question is nothing but from 5th class. आपको 5th क्लास में पढ़ाया जाता है, बट नॉट इन वर्नाकुलर मीडियम। आपको सीबीएसई या अच्छी स्कूल में पढ़ोगे तभी ये सब पढ़ाया जाएगा, बाकी विलेज में ये सब नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है? ओके, एंड वी आल्सो डोंट केयर अबाउट इट। यस, Devans, the question is in front of you, and this is 2 mark question. Latest question in GATE 2023. Which one of the following shapes can be used to tile covering cover by repeating a flat plane extending to infinity in all direction without leaving any empty spaces in between them? The copies of the shapes should used to tile are identical and not allowed to overlap. The options are circle, regular octagon, regular pentagon, and rhombus. Okay, regular pentagon means sides are equal, right? All sides are equal, all angles are equal. Regular octagon maybe all sides are equal, all sides are okay. Now you have got rhombus here. So which option will be correct according to you? तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको रियलाइज करना है कि if you're going to put circle as a tile, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक सर्कल रखा, सर्कुलर टाइल, दूसरा सर्कुलर टाइल रखोगे जस्ट लाइक दिस। घर में आप देखोगे, लाइक आई थिंक जब घर बनता है तो नोबडी केयर्स अबाउट इट, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, वो पापा देख लेंगे, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आपको यू हैव टू बी आल्सो टेक केयर, मैंने किया था, या तो सपोज दीज आर द 2 टाइल्स यू हैव केप्ट, राइट? तो यहाँ पर ये गैप आ गया, यू सी देयर इज अ गैप, so what you will do, you will break the tiles and you will put over there. So what the question is saying, this is a tessellation problem, okay? तो आपको सर्कुलर टाइल तो आप यूज ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको बार बार ब्रेक करना पड़ेगा एंड यू हैव टू फिल दैट, the space will be there, right? Okay, now rhombus is one of the good choice, you can say rhombus अगर आप देखोगे, rhombus will look like kind of a square only, ऐसा, okay? Now you can put one more tile here, one more tiles, so rhombus can be the better choice, okay? Rhombus can be the better, in fact these are also not okay, so rhombus will be correct here, okay? Rhombus, ठीक है? तो ये आपको याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना? इसको बोलते हैं टेसलेशन। इफ यू सर्च इन अ गूगल यू विल फाइंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेसलेशन। टेसलेशन इज नथिंग बट टाइलिंग द फ्लोर। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अब बच्चे तो भूल जाओ, है ना? जो अच्छे सिटी से बिलोंग करते हैं, दोज हु आर लाइक देयर ब्रेन आर फॉर्मूला बेस्ड नहीं है उनकी लाइफ, तो दे कैन डू इट, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और टेसलेशन जब हम लोग करते हैं तो पॉलीगन ही यूज करेंगे, ठीक है? तो आप लोग ये याद रखना। तो आई बिलीव एवरीबडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर।
बस मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल में क्या होता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल साइड्स ऑफ वन, okay, if all sides of one are equal to corresponding sides of another. So whenever you are talking about congruency guys, always remember one concept called CPCT. क्या बोलते हैं उसको? CPCT, right? Congruent parts of corresponding triangle, right? Okay, sorry, corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle. Okay, ये याद रखना, CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Okay, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से कॉन्ग्रुएंसी। वन इज कॉल्ड SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आपको याद रखना है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का मतलब क्या होगा? इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल। मान लो दो ट्रायंगल आपके पास हैं, ठीक है। मैं बस आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट SAS, ठीक है, तो मान लो आपके पास दो ट्रायंगल्स ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। देयर आर टू ट्रायंगल्स, बस या देयर आर टू ट्रायंगल्स। तो इसको बोलेंगे ऐसे यस, बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल। ओके, आई मीन करस्पॉन्डिंग टू दैट, करस्पॉन्डिंग टू दिस साइड इज इक्वल, करस्पॉन्डिंग टू दिस साइड, एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसको बोलेंगे SAS, राइट? दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दैट इज SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? इक्वल, एंड उसके ऊपर कुछ ऐसा बना रहता है, राइट? आप लोग देखे भी होंगे ऐसा, ठीक है। एंड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल में क्या रहेगा कि एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड सी हमेशा याद रखना इक्वल रहेंगी, एंड यू हैव टू आल्सो मैच द वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस सबको ही पता होगा, वर्टाइसेस का मतलब क्या है ना? यस, तो इसको बोलते हैं या ASA, क्योंकि एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स हैं और एक साइड है, एंगल साइड एंगल, राइट? तो याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ AS विल बी व्हाट? एंगल एंगल साइड। ओके, सो दो एंगल्स रहेंगे सेम साइड के, और उसके अपोजिट साइड जो रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स, अपोजिट साइड्स। ओके, so two angles and the side opposite to one of the angle is equal to corresponding angle. Okay, and the side of the another triangle, you can say they are called AAS, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, AAS के केस में क्या रहेगा सिचुएशन? sometimes if you know these concept you can solve the question very quickly, ठीक है। ये देखो, ये एंगल corresponding to this angle is equal, ये और ये, राइट? चलो नेक्स्ट। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए बस। और ट्रिपल एस का मतलब थ्री साइड्स ऑफ द वन ट्रायंगल्स आर इक्वल। ओके, तो मान लो दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, राइट? यू कैन आल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल एस, so that is also congruency. Okay, इसको बोलते हैं ट्रिपल एस, थ्री साइड्स। we are not talking about angle here, we are talking about sides. एंड साइड्स एंगल भी होता है, साइड एंगल। तो दो साइड्स, उसके अपोजिट एक ट्रायंगल जो रहेगा, यू कैन से इफ टू साइड्स एंड द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड ऑफ द वन ट्रायंगल, ग्रेटर साइड के अपोजिट जो एंगल रहेगा दैट शुड मैच, दैट शुड मैच। तो आप उसको भी बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंट है। सो SSA 1 मिनट या, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू राइट मैनी थिंग्स, जस्ट आपको समझ जाना है। तो SSA, ठीक है, दिस इज SSA। यू सी दीज आर द साइड, ये सबसे बड़ी साइड है, उसके अपोजिट एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, राइट? ठीक। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इज वेरी स्पेशल केस। ओके, रिमेंबर व्हेन सिमिलरिटी ऑफ अ पॉलीगन होल्ड्स, आपको याद रखना है एंगल 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 सिमिलरिटी होता है। इफ टू ट्रायंगल्स आर गिवन, यू कैन से, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो टू ट्रायंगल्स यू कैन से आर सिमिलर, राइट? ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ट्रिपल एस सिमिलरिटी होती है
साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होती है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इन सिमिलर ट्राइंगल्स एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बस आप उतना याद रखो, है ना। कोई भी अगर दिया है कोई भी सिमिलर ट्राइंगल, तो उसमें ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। सिमिलर ट्राइंगल, okay, if you stand two students, okay, so you can say that two students are similar, right, लेकिन उनका डायमेंशन सब कुछ मैच करना चाहिए। तो रेशियो ऑफ मीडियन, रेशियो ऑफ हाइट्स, रेशियो ऑफ सर्कम रेडियाई, रेशियो ऑफ इन रेडियाई, रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की गाइस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। इक्विलेटरल मींस ऑल साइड्स, थ्री साइड्स आर इक्वल। You can say A, right? And if you want to find the, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, they might ask what is the height of this, okay? You can find out, right? So I'm not gonna find that, okay? तो आपको एरिया याद रखना है, एरिया इज नथिंग बट व्हाट 1/2 a square sin of angle is gonna be 60 here, all angles is going to be 60, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, राइट। और अगर आप 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को यूज करते हो, दैट विल फॉर्म अ हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन जो होता है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिल के बनता है। तो एरिया अगर कोई पूछता है एरिया ऑफ द हेक्सागन, area of the hexagon is nothing but 6 times of the area of equilateral triangle, right? I'm talking about regular polygon जिसके सारे साइड सारे एंगल सेम हो। तो sin of 60, you can say that this is nothing but a square root 3/4। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आप निकाल सकते हो, हाइट इज गोइंग टू बी, दिस इज द हाइट h, a root 3/2। हाइट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ से देख लो हाफ बेस इनटू दैट विल बी द हाइट, ठीक है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो हाइट क्या होगी, ये वाला a/2 है, ये a है, तो sin 60, व्हाट इज sin 60, राइट? You know, sin 60 is nothing but the perpendicular upon hypotenuse, right? Answer is there, okay. Needless to apply Pythagorean triangle and all, Pythagoras theorem, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आपको तो sin 60 की वैल्यू पता होती है, आप हाइट निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो इतना आप याद रखना, okay? और सर्कम रेडियस याद रखना, सर्कम रेडियस इज नथिंग बट r, दैट इज नथिंग बट व्हाट, सर्कम रेडियस। Circumradius is nothing but 2h/3, 2h/3, that is nothing but a by root 3, ठीक है। और रेडियस in radius, you can say in radius is gonna be h/3, in radius h/3, which is nothing but again a by 2√3। ये बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बस, ठीक है। और एक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो याद रखना है कि जो इन सेंटर और सरकम सेंटर होता है, दैट लाइज एट अ पॉइंट दैट डिवाइड्स व्हाट, हाइट इनटू 2:1 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं दैट आपको याद रखने हैं बस। और मेजर यूज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कहां पर होगा, हेक्सागन का एरिया निकालने में, ठीक है, ये याद रखना। कैन जस्ट राइट इन योर शॉर्ट नोट, मतलब जो नोट्स आप बना रहे हो, तो आप याद रखना। मान लो क्वेश्चन में आ गया कि हेक्सागन का एरिया क्या होगा, अब कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला ही नहीं पता है, ठीक है। तो इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर लाइज एट द पॉइंट दैट डिवाइड द हाइट इन द रेशियो 2:1। द सर्कम रेडियस इज ऑलवेज ट्वाइस द इन रेडियस, r equal to 2r। Among all the triangle that can be formed with the given perimeter, the equilateral triangle will have the maximum area, याद रखना, ठीक है। Equilateral triangle in a circle will have maximum area compared to other triangle inside that same circle, ठीक है। इतना याद रखना। अब अगर बात करते हैं आइसोसेलेस की, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है गाइस, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मीन्स
situation will be like this. Two sides are going to be same, right? Two sides will be same. You can say a ये वाला अलग रहेगा, इसको बोलेंगे बेस. बेस. If you want to find the area, guys, if you want to find the area कैसे निकालेंगे? Area you have to remember also formula of area. Directly you can remember. Area is going to be b by 4 square root of 4a square minus b square. Okay, that is very important to keep in mind. And you can think about also, if you drop one situation here, and this is the angle theta, we don't know what is the angle here, so you can find the height here. Height is nothing but 1 by 2. Okay, product of two sides, right? So you can say that AB, right? And sine of theta, and sine of theta you can find out from here only, right? So sine of theta will be obtained, and even you manipulate, you will get this formula, b by 4 square root of 4a square minus b square. You can prove it. Okay, and height is going to be what? Sorry, height will be nothing but you can use the Pythagoras theorem, right? And you can find out. So in isosceles, the angle opposite to equal sides are equal. Angle opposite to equal sides. ये जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये वाले एंगल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे. ठीक है, तो आप तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हो. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टोटल इज गोइंग टू बी व्हाट? टोटल इज गोइंग टू बी 360. ओके, सो यू कैन फाइंड आउट. अगर एक एंगल पता है तो तीसरा एंगल आपको पता चल जाएगा. और राइट एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर पाइथागोरस थ्योरम we can use always, right? And you can find the area. Okay, area is nothing but product of perpendicular sides. ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो राइट एंगल के केस में. और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं गाइस जो कि आप रेगुलर सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो. राइट एंगल ट्रायंगल, right angle triangle, if someone is going to ask you what is the converse of right angle triangle, right? What is the converse of Pythagoras theorem? So you have to say right angle, right? राइट एंगल में ही आप पाइथागोरस लगाते हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस आप लगा रहे हो, राइट? सो आप बोल सकते हो कि मान लो ये, ठीक है, यू कैन से ए बी सी, राइट? तो पाइथागोरस आप लगा सकते हो इफ यू वांट टू फाइंड ए बी एंड दिस इज सी, राइट? तो there is a concept called Pythagorean triplet. Pythagorean triplet, right? तो आपको मैंने बताया भी था, आई थिंक नंबर सिस्टम में बताया हुआ. सपोज यू नो these two sides, this is 3, this is 4, use if you say, or it should be 5 always, right? Directly you can write, okay, 3 4 5. okay, they always run in कहते हैं ना कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे. तो ट्रिपलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आपको अगर मान लो 3 4 दिया है तो आपको पाइथागोरस नहीं लगाना है, डायरेक्टली यू शुड नो 5 आंसर. ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप सेव कर सकते हो टाइम. और भी बहुत सारे ट्रिपलेट हैं लाइक 5 12 13 7 24 25. ओके, सो मेनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट? सो एनी ट्रिपलेट यू कैन फाइंड आउट. ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. जैसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन. मीडियन का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट टर्म. Okay, some important term that you have to remember. So what are those important terms? बस मैं एक ट्रायंगल लूंगा पहले. ये एक ट्रायंगल है, मान लो मैंने अपोजिट वर्टेक्स से P से मैंने एक ड्रॉप किया लाइन अपोजिट साइड में, R से मैंने ड्रॉप किया, G से मैंने ड्रॉप किया, बीच में ये मीटिंग पॉइंट एक है C. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई बिलीव एवरीबडी माइट बी फैमिलियर, राइट? तो एक होता है इंपॉर्टेंट टर्म मीडियन, अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल. जो 3 साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? ओके, टू द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द मीडियन. ओके, आई होप दिस मेक सेंस. तो इसमें आप मीडियन बता सकते हो कि मीडियंस आर नथिंग बट हियर. ओके, देयर आर मेनी मीडियंस, राइट? So there are 3 medians you can say. One is PG, one is QF, and one is RE, right? And the midpoints are nothing but E, F, and G. Okay, and the median divides triangle into 2 equal parts. You can say 2 parts of a equal area, right? So अगर आप एक median draw करते हो PG,
तो इसका एरिया डिवाइड हो जाता है टू इक्वल पार्ट्स में, ओके। एंड द पॉइंट वेयर थ्री मीडियन मीट्स इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ओके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो आपको याद रखना है। और सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ऑलवेज डिवाइड्स मीडियन इनटू 2:1 पार्ट्स। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम जस्ट गिविंग यू द रिवीजन, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन देन। मीडियन का मतलब मैंने आपको बताया, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। सेंट्रॉइड का ये है, और आप यहाँ से रेशियो भी देख सकते हो कि PC upon CG is going to be 2:1, QC upon CF is going to be 2:1, and RC is to CE is going to be 2:1. Okay, तो ये आप बेसिक याद रखना। एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज आर देयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन, तो अगर आप आराम से निकाल सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो आप 2 टाइम्स मीडियन स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स हाफ द थर्ड साइड स्क्वायर। तो अब इतना टफ, मतलब बहुत सारे फॉर्मूला भी नहीं याद रखना है। अब एक आता है एल्टीट्यूड, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ऐसा कुछ नहीं है को मिड पॉइंट से मीट करेगा, राइट। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, ठीक है। मीडियन का मतलब क्या होगा कि मिड पॉइंट में ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। एंड एल्टीट्यूड मीन्स अपोजिट में ड्रॉ करना है, कहीं भी टच करेगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, कि परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, राइट। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखो। ये सेकंड है, वी कॉल इट एल्टीट्यूड, okay, altitude or sometimes we call it height. Okay, and all the altitude of a triangle meet at a point. जब तीनों altitude आपके किसी एक पॉइंट में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस केस में हम सेंट्रॉइड बोल रहे थे, यहाँ पर हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। अब क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, वन ऑफ द इंटरव्यू आई वाज गिविंग, राइट। सो दे आस्क मी व्हाट इज ऑर्थो सेंटर। तो अब देखो यार, आई एम फ्रॉम लाइक वी ऑल आर इंजीनियर्स, राइट। तो अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो इतना बेसिक तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। रीजन क्या है? वी इग्नोर थिंग्स, ओके। स्कूल डेज की चीजें हमें लगता है, बट यही चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगे आईआईटी में जाने के लिए। आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो अपना टेक्निकल, वहां पर भी जो डिफरेंट ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो ये सब आ जाता है, आर्थो सेंटर, आर्थो, है ना। तो कुछ चीजें हैं जो आप याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ये यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ altitude. Okay, a perpendicular drawn from any vertex to opposite side is called altitude. In this figure you see AD, BF and C are the altitude, and all altitude of a triangle meet at a point is called orthocenter. The angle made by any side at orthocenter, angle made by any side at orthocenter, and the vertical angle make a supplementary pair. Okay, supplementary का मतलब क्या होता है? अगर दो एंगल को आप ऐड करो तो 180 आना चाहिए, ठीक है। या आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक। नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू अ साइड एंड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, राइट। एंड इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। ये भी आप याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं बस क्विकली आई कैन अटैच दीज पॉइंट्स आपके लिए, कुछ पॉइंट्स आप याद रखो। I'm not going to write anything, just remember this. A line that is perpendicular to a side and bisect, it is a perpendicular bisector. आप देख सकते हो, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लो और एक लाइन ले लो, परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर टू अ साइड। ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज गोइंग टू बी bisector, okay। It is going to divide in 2 parts. Point at which the perpendicular bisector of a side meet is called circumcenter. इसको बोलते हैं circumcenter, इस पॉइंट को। इसको हम लोग, देखो 3 पॉइंट्स हैं, याद रखना। क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया आपको?
सेंट्रॉइड, आर्थोसेंटर, ये सर्कम सेंटर हो गया. द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट circumscribe the triangle. And okay, there can be only one such circle, याद रखना. An angle formed by any side at the circumcenter is 2 times of the vertical angle opposite to side. ये सब प्रॉपर्टी आप याद रखो. एंड इन सेंटर का मतलब क्या होता है? इन सेंटर. ओके, सो इन सेंटर भी आप याद रखना. ओके, the line bisecting the interior angle of the triangle are called bisector. Okay, so you can just remember this. So many things I'm not going to introduce. Okay, अब बात करेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल की. क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल इज डन, एंड क्वाड्रिलेटरल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल आपको आएगा क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मीन्स व्हाट गाइस? 4 sides. 4 sides. 4 sides. तो 4 sides में क्या रहेगा? आपको बस के डेफिनेशंस क्लियर होने चाहिए, जैसे कि एरिया. ओके, एरिया ऑफ दी एनी क्वाड्रिलेटरल. तो मैं मान लो एक इन जनरल क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ where 4 sides are there and you know some angles as well, you know some diagonals as well. This is the particular quadrilateral, 4 sides, and these are the diagonals. Okay, we are connecting, you can say, मतलब जो वर्टाइसेस हैं, तो हम नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को अगर कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डायगोनल. तो अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का? तो एरिया इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इनटू साइन ऑफ द एंगल between them. ठीक है, sign of the angle between them. Okay, the area is going to be what? 1/2 into, आप ये भी देखोगे कि ये जो डायगोनल है ये पूरे क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. देयर विल बी 2 ट्रायंगल्स. ओके, अगर एक डायगोनल आप ड्रॉ करते हो, सॉरी एक हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? डायगोनल्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. ये बेसिक बिटवीन देम. ओके, तो ये आप फॉर्मूला याद रखना बस. नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है गाइस, कोई भी आप एक अगर हम बात करें पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल की, तो आपके पास पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकते हैं? एक तो स्क्वायर हो सकता है, सारे साइड सेम, ए. एक तो आपका रेक्टेंगल हो सकता है. ओके, स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, ए इंटू बी. और एक हो सकता है पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम है आपका. पैरेललोग्राम, यू कैन से दैट you can draw the height here from here and this is the base b. तो अगर कोई पूछता है इसका एरिया क्या होगा? एरिया इज नथिंग बट a square, area is nothing but ab and area is nothing but what? b into h. ठीक है, मान लो आपके पास पैरेललोग्राम दिया है कुछ ऐसा. दिस इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड्स आर गोइंग टू बी सेम. ठीक है, तो आराम से आप अगर मान लो हम यहां से ड्रॉ करते हैं हाइट, क्या? If I'm going, suppose this is the height, and this is the, you can say this is nothing but x. What is the area of this? Area is going to be h into x. Suppose एक height ऐसी भी दी है, तो मतलब you can say that this is nothing but by, and this is nothing but base. What is the area? Area is going to be b by, but दोनों सेम होंगे, राइट? ये भी आप याद रखना, क्योंकि एरिया कैन नॉट चेंज, राइट? तो आप कहीं से भी ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड बेस ले लो, एंड देन यू कैन फाइंड द एरिया, राइट? एक क्वेश्चन भी आया था आपके गेट एग्जामिनेशन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. आई बिलीव यू गाइस कैन सॉल्व इट. और बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, तो फिर नहीं बनता है वो क्वेश्चन. ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो नहीं बनेगा, और आप आधा घंटा ले लोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, एक गेट का क्वेश्चन उठाते हैं डायरेक्ट PYQ, तब मजा आएगा. तो एरिया से क्वेश्चन आते हैं गेट में. देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का. आप देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, अगर आप नोटिस करोगे. बोथ ऑफ यू प्लीज सॉल्व दिस. सो इन द गिवन फिगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड्स आर गोइंग टू बी सेम. ठीक है, सारे साइड सेम नहीं होंगे, अपोजिट साइड सेम होते हैं, पैरेलल होते हैं, पैरेलल.
तो सेम है। With PS equal to 7 centimeter, PT equal to 4 centimeter and PV equal to 5 centimeter, what is the length of RS निकालना है। देखो भाई कैसे निकालोगे, अगर आप मेरी क्लास लिए हो तो आपको यहाँ कुछ नहीं लगाना है। नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि साइन बहुत सारा रूल लगा डालते हैं, they waste their time, right? So आपको सिंपली क्या करना है, आंसर मी प्लीज गाइस, आई विल गिव यू, कितना टाइम आपको देना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये दो मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का जो भी है, हाउ मच टाइम शुड आई गिव यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, ओके, लेट्स मूव अहेड एंड आई बिलीव ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आपको एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया, एरिया क्या यहाँ पर है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, मान लो ये वाला तुम्हारा कितना है, ये कितना हो जाएगा 7, बिकॉज इफ दिस इज 7 सो दिस शुड बी 7, 7 into 4 is the area and which is equal to, आपको ये वाला हाई लेंथ निकालना था, यू कैन से x, तो x into 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 28/5, तो आंसर कितना होगा b। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से 5 सेकंड में कर सकते हो, ज्यादा माइंड नहीं लगाना। लेकिन गेट में क्या होता है ना कि हम लोग ज्यादा माइंड लगा देते हैं क्वेश्चन में, और जो बंदा ज्यादा माइंड लगाएगा उसका टाइम भी जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग तो कहीं नहीं लगाना है, बस कॉन्सेप्ट यूज करो बेसिक वाला बस। तो आंसर इसका डायरेक्ट है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 28/5, यू कैन सी हियर, राइट, इन सेंटीमीटर। बोथ ऑफ यू अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। तो आप क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट आप उसमें भी लगा सकते हो, मतलब यू कैन फाइंड दिस सेमी पेरीमीटर, हेरोन फॉर्मूला उसके लिए भी है, ठीक है। मान लो कोई एक क्वाड्रिलेटरल आप ले लो, राइट, तो उसमें भी आप लगा सकते हो, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकालोगे ABCD का, ठीक है, मान लो, एंड यू कैन फाइंड द एरिया, ओके। मतलब मेरा कहने का कि मान लो आपके पास कोई ऐसा फिगर दिया हुआ है, इसका एरिया क्या होगा, इस सरकमस्क्राइब्ड जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया क्या होगा। दिस एरिया कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ हेरोन फार्मूला आल्सो, राइट। सो ये फार्मूला आप याद रखना। पहले तो आप सेमी पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर ये A+B+C+, ओके, और डायरेक्टली आप एरिया निकाल लो इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर एंड लाइफ इज वेरी सिंपल नाउ, ओके। ये कॉन्वेक्स सिचुएशन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। रीजन इज दैट ऑल द डायगोनल्स आर गोइंग टू बी इनसाइड, ओके। So in convex quadrilateral inscribed in a circle, the product of diagonal is equal to the sum of the product of the opposite sides. ये भी एक पॉइंट याद रखना इस केस में। कुछ आप लोग पॉइंट याद रखो, बाकी प्रॉब्लम तो आप कर ही ले जाओगे, ये पॉइंट याद रखना। And sum of all the angle of the quadrilateral is 360, that you know, right? तो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई पूछता है एरिया, एरिया भी आप निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड इनटू द साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ओके। मान लो आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक तो फॉर्मूला ये था, ठीक है। आई विल शेयर माय PDF सो यू गाइस कैन फॉलो दैट, ठीक है। तो मान लो हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, सम टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में फर्स्ट पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लो। दिस इज द पैरेललोग्राम, okay. So a parallelogram is nothing but a quadrilateral with opposite sides parallel, as shown in this figure. You see base and height, and this is the angle Q. So you can find the area with the help of this formula also. You can find the area with the help of product of any two adjacent side, okay, or angle between that. So if this is Q, so you can say sine, okay. And perimeter is nothing but 2 plus A plus B, right? Because ये भी B हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ऐड कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। एंड देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जो आपको याद होना चाहिए। अगर कोई भी डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, वो हमेशा बाइसेक्ट करता है,
तो let me put that property also, properties of parallelogram, क्योंकि मुझे पता है कि you guys will not study by yourself ये सारी चीजें, टाइम ही नहीं है ना, मतलब we don't have that much time, right? लेकिन ऐसा नहीं है, खुद से भी करना पड़ता है। आप बस रीड कर लो, प्रॉब्लम जब आएगा तो आप अप्लाई करो इन सब कॉन्सेप्ट को बस। You see guys this, डायगोनल्स हमेशा क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्म अ रेक्टेंगल, याद रखना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अ रेक्टेंगल। कोई भी सर्कल आप ले लो, उसके अंदर अगर पैरेललोग्राम आप इंस्क्राइब करते हो तो रेक्टेंगल होगा। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द सर्कल इज अ रोम्बस, ये भी याद रखना। अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, है ना, and the sum of square of the diagonals is equal to the sum of the square of the four sides। ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर मान लो डायगोनल का स्क्वायर लो दोनों का, और सारे का स्क्वायर ले लेके इक्वेट कर सकते हो, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, आप लोग याद रखना एप्टीट्यूड एग्जाम में। इसके बाद आता है रेक्टेंगल गाइस। तो रेक्टेंगल बहुत सिंपल सिचुएशन है। रेक्टेंगल के केस में आप याद रखना, जो सेकंड काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एंगल सारे 90 डिग्री ही रहेंगे, राइट, ये आपका रेक्टेंगल है। rectangle is nothing but a parallelogram only with all sides are with all angles are 90, area is gonna be base into height, simple, right? And the diagonal, what is the value of diagonal here if you want to find? Pythagoras लगा दोगे तो diagonal आ जाएगा, d is going to be square root of b square plus h square, Pythagoras से खत्म। तो base and heights are also referred to as what? Length and the breadth in the rectangle। मतलब आप इसको you can say length, you can also say breadth, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। एंड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फिर से, इफ इट इज अ पैरेललोग्राम, आपको पता है कि बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल्स, ठीक है, तो जो अगर सेम प्रॉपर्टीज अप्लाइज हियर, राइट। और एक चीज और याद रखना, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, मतलब ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट, ये so our diagonals are equal and bisect each other। Bisector of the angle of a rectangle form another rectangle and all rectangles are parallelogram but reverse is not true, ठीक है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट फिगर गाइस, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर। उसको भी हम लोग ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि सबको पता है, बस प्रॉपर्टीज याद रहना है और बाकी एग्जाम में आप कर ले जाओगे, ठीक है। मटेरियल आपको पूरा पता होना चाहिए। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, याद रखना। अब देखो, स्क्वायर इज ए स्पेशल केस, राइट। रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड इक्वल और रोम्बस यू कैन विद ईच, तो रोम्बस को भी हम लोग स्क्वायर ही बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर या रोम्बस बोल सकते हैं। एरिया इज गोइंग टू बी बेस इनटू हाइट। एरिया इज गोना बी आल्सो यूज्ड एज लाइक डायगोनल, आपको पता है तो एरिया निकाल सकते हो, ओके। स्क्वायर इज अ रोम्बस कैन से, ओके। पेरीमीटर आप निकाल लो, sum of all the sides is going to be a perimeter। diagonal आपका पाइथागोरस से निकल जाएगा, इन रेडियस a/2 होता है, बस खत्म, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आप याद रखना एंड आई बिलीव दिस इज फाइन, ठीक है। प्रॉपर्टीज आप याद रखना, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना, साइड इज डायमीटर ऑफ इंस्क्राइब्ड, ओके। ये सारी चीजें आप कुछ याद रखो। मान लो एक सर्कल लेते हैं, उसके अंदर अगर हम, ओके, ये सिचुएशन अगर है तो आप याद रखना कैसे क्या करते हैं, राइट। तो बस लास्ट चल रहा है, लास्ट करने के बाद देन वी विल सॉल्व प्रॉब्लम आल्सो इन द नेक्स्ट सेशन। मतलब कुछ प्रॉब्लम करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आप कर भी सकते हो बट आई विल टेक सम पीवाईक्यू, राइट। आप ये याद रखना, साइड इज डायमीटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड, डायगोनल इज द डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, और ये फॉर्मूले आप याद रखो बस। अब एक होता है गाइस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल ओनली, क्योंकि
लेकिन क्या होगा कि एक साइड बहुत ज्यादा होगी, एक साइड उसके सामने वाली साइड कम होगी. टू पैरेलल साइड्स विल बी देयर एंड स्लैंट साइड्स विल बी देयर. ट्रेपेजियम भी एक अच्छा सा फिगर है क्वाड्रिलेटरल का, आप याद रखो, प्रॉपर्टी के साथ याद रखो. ये ठीक है. तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो आप फॉर्मूला कैसे याद रखोगे एरिया का? एरिया इज नथिंग बट हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स बस इनटू हाइट. हाइट पता है तो पैरेलल साइड्स. मीडियन आप निकाल सकते हो. मीडियन इज नथिंग बट हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. मीडियन आ जाएगा. ठीक है. और आप यहाँ पर ई एफ एंड ए बी आप देख लो पैरेलल हैं. अब ये एंड इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड देन डायगोनल विल बी इक्वल टू, राइट. नॉन पैरेलल साइड्स अगर दोनों सेम है तो डायगोनल भी इक्वल्स आएंगे. ये सारे फैक्ट्स आप याद रखो. ठीक है. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन. और रेगुलर हेक्सागन के केस में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं गेट में, और बच्चों को नहीं पता रहता है हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन आपका दिखता कैसा है? रेगुलर हेक्सागन इज नथिंग बट ऑल साइड्स शुड बी सेम. रेगुलर का मतलब ही ऑल साइड्स शुड बी सेम. ठीक है. ये रेगुलर हेक्सागन है जो कि मैंने आपको बताया था कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है. आप एक ट्रायंगल ले लो, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल कनेक्ट कर दो, आपको बन जाएगा. ठीक है. ओके. तो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप याद रखना. ठीक है. तो प्रॉपर्टीज के अगर कोई पूछता है एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, तो 6 टाइम्स द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कुछ प्रॉपर्टीज आप याद रखो, बस हो गया. ओके. कुछ फॉर्मूलाज, जैसे कि एक फॉर्मूला तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो, ये पहला फॉर्मूला है. लेकिन इजी तरीका बस वही है कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हेक्सागन है. अगर आप देख लो, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ यू आर एबल टू रियलाइज, तो बहुत सिंपल हो जाता है. ये देखो यहाँ लिखा भी है 6 टाइम्स द रूट 3/4 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6. और गेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं. वी विल शो यू द क्वेश्चन. इनफैक्ट आई विल शेयर इन द ग्रुप आल्सो. ठीक है. If you look at the figure closely, it will not be difficult to realize that the circumradius R, which is A, okay, the side of the hexagon is equal to the circumradius. और अगर हम बात करें गाइस, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे. इस सेशन में हम लोग पूरा फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा पॉलीगन पूरा एंड हो जाता है. अब सर्कल स्टार्ट होगा एंड देन मेंसुरेशन. तो देवांश, आपको सही लगा होगा जो भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया. बेस्ड ऑन दिस ओनली मैनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. तो मैं आपको पहले क्वेश्चन शो करूंगा, फिर हमें मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेना है. तो आई थिंक वन सेशन वी नीड मोर. ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन गाइस. टेक केयर. ठीक है. समझ आया ना देवांश? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर होना जरूरी है. टेक केयर. Translation is very important fact. ठीक है. Thank you. We'll meet in the next session, guys.